Students, welcome in commercial studies class. Okay, this class is for class 10th. Okay, so we will continue with the chapter, that is chapter 4th, that is advertising and sales promotion. So till now we have completed the advertisement, its meaning, importance, objective, how it plays an important role for society, customers and the dealers, right? Now today I am going to start with the sales promotion, right? It is also a very important aspect of marketing. Marketing का बहुत important aspect है sales promotion, right? It is different from your advertisement and it is different from personal selling also. Okay, so it's different from both. Okay, so let's understand that what is that sales promotion. Those marketing activities other than personal selling and advertising and publicity. It is different from advertisement, personal selling and publicity that stimulates consumer. Means create interest among the consumer, purchasing and dealers effectiveness. Okay, it stimulates the customer as well as it for purchasing that particular product or services and dealers effectiveness, and it also creates interest amongst the dealers also who will deal with that product. Okay, such as point of purchase, displays, shows, exhibitions, demonstration, various non-recurring selling efforts not in ordinary routine. This definition and the meaning of sales promotion was given by American Marketing Association, right? So you have seen many times, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के किनारे किस तरह से जैसे कभी बाइक का कभी कुछ ऐसी चीजों का एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, राइट? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद शोज के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, एग्जीबिशन लगाते हैं, विद एग्जीबिशन ऑल्सो. So these are the different ways of doing sales promotion. Now here what they are doing, they are promoting the sales को प्रमोट करते हैं. And basically the important aspect of this sales promotion is that they focus on some limited persons or customers. वो बहुत फिक्स कर लेते हैं कि ये हमारे कस्टमर्स होंगे, ओके, तो उन पे हमें काम करना है, राइट? So they will work like this. They serves as a link between two by focusing selling efforts and selected small groups of the people. They just focus on small selected group. वो focus कर लेते हैं कि ये हमारा ग्रुप है and this is the group and we have to work on them. हमें उन्हें उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, प्रोवोक करना है, so that they can come for the product. Okay, now one more thing is that जैसे एडवर्टीजमेंट में क्या होता था, बार बार एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बट इसमें क्या है, बस एक बार आपको कोई भी एडवर्टाइज किया जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज फॉर वन टाइम, एक बार. ओके, सो दिस इज योर सेल्स प्रमोशन. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू बेसिकली क्रिएट और टू इंक्रीज द सेलिंग. ओके, सेल को इंक्रीज करना ही सेल प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, now the ultimate aim of sales promotion is promoting the sales and profit. It's given in your book that its ultimate aim, ultimate objective of the sales promotion is to gain the profit or to sell the product in the market, right? Now basically some lines are given that it serves as a link between the two by focusing sales effort on selected small groups. Okay, now advertisement and selling are essential or basic ingredients of promotion mix. I explained you that these both are that your advertisement and promotion. They basically advertisement is your part of promotional mix, right? There are 4 P's. Okay, बहुत important aspect है advertisement और personal selling. But this sales promotion is supporting or facilitating elements of promotional strategy. This sales promotion is not the part of your promotional mix, but it works as a scaffolding. एक support देता है. It works as a support for this advertisement and personal selling. Sales promotion bridges the gap between advertising and personal selling. This sales promotion makes a bridge between your personal selling and the advertisement, right?
सो दिस इज योर सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन किसी भी तरह से हो सकता है. मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, अभी एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, तो उसके क्या करेंगे, सैंपल्स लगा के, सैंपल्स के थ्रू या उसके कहीं एग्जीबिशन लगा के, ओके, डिफरेंट तरीके से उसको प्रमोट किया जाएगा, राइट. एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्ट, द एडवर्टाइजमेंट विल बी गिवन, ओके. सो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल्स प्रमोशन होते रहते हैं. नाउ दीज सेल्स प्रमोशन आर डिवाइडेड इनटू two aspects, okay, that is your consumer sales promotion and the other one is dealer sales promotion. Now this consumer sales promotion is for the consumers. जो consumer sales promotion है, that is for the consumer, as its name itself is telling that consumer sales promotion. Consumer sales promotion is for the consumers only, right? So in this activity is designed to inform and educate the customer. In this sales promotion basically the consumers are the target. Consumers को target किया जाता है. They are focused and now all the activities designed to inform and to educate the customer. इसमें जो भी activities की जाती हैं, जो भी इस बात को ध्यान में रखें कि we have to create the interest among the customers. हमें customers को attract करना है, right? So this is for the customer or consumer, right? Consumer basically. Now dealer sales promotion. Dealer sales promotion is basically for the dealers, okay, who deals with that product, okay. Now here it is given that dealers, this is for the dealers, so it is used to help dealers and to improve dealers effectiveness. It is used for the dealers to improve the effectiveness of the dealers, okay. dealers को उनके अंदर किसी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके एक इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, which helps the dealer to sell the product in the market. तो ये डीलर से रिलेटेड है, राइट. Now, what are the objectives of sales promotion? It is also same as advertisement. जैसे advertisements की थी लगभग sales promotion, okay, because these are related to marketing, right. तो बेसिकली इनका क्या है, डिमांड को क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करवाना है. सो दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. So the first one is to introduce new product, okay. So basically sales promotion का first objective is to introduce new products. New products को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, right. कभी कभी क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया, पहले भी बताया कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन उनका एडवर्टीजमेंट, कई ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाती. तो ऐसी कंडीशन में जो सेल्स प्रमोशन इट हेल्प्स, वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट्स को through the sellers, or they try to create the demand and they try to introduce the customers in the market and they educate the customer and give information about that particular product, okay. Next is to attract new customers. न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, बिकॉज कस्टमर्स आर द किंग एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द कस्टमर. जितना ज्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई एंड प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. सो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनको स्टिमुलेट करना सो दैट दे कैन परचेज दैट प्रोडक्ट, ओके. दे प्रेफर टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज सेल्स ड्यूरिंग स्लैक पीरियड्स and thereby to clear all the stocks. The most important thing for any producer or seller that to clear out the old stock. क्योंकि क्या होता है कि हर स्टॉक की अपनी एक एक्सपायरी होती है, राइट. तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो पेरिशेबल हो या ईटेबल हो, चाहे किसी भी तरह का हो, हम उसको यूज नहीं कर सकते. ओके, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड का एक्सपायरी डेट इज गिवन ऑन द रैपर्स. सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्स प्रमोशन के थ्रू दे ट्राई टू क्लियर आउट द स्टॉक, क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी इज अपग्रेड हो रही है, तो पुरानी फिर जल्दी कोई प्रेफर नहीं करता. एवरीबडी वांट्स टू परचेज द न्यू वन एंड एडवांस्ड, ओके. सो थ्रू सेल्स प्रमोशन दे ट्राई टू क्लियर आउट देयर ओल्ड स्टॉक्स. नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म. बेसिकली the fourth one, to encourage dealers to carry large stocks. Now one question will arise. कोई अगर मान लो है सेलर, वो सबसे पहले ये सोचेगा कि why should I purchase that and why should I deal with that particular product. मैं उस प्रोडक्ट से क्यों डील करूँ, राइट. ये क्वेश्चन अराइज होगा. सो सेल्स प्रमोशन क्या करेगा, इट विल गिव इंफॉर्मेशन
एंड गिव नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट, जिससे क्या जो उस डीलर की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज करेगी, वो उस चीज से सहमत होगा, समझेगा, देन ऑटोमेटिकली वो उस प्रोडक्ट्स को ज्यादा स्टॉक लेने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो कोई भी इस तरह से नए प्रोडक्ट को लेके कोई ज्यादा स्टॉक लेना नहीं चाहेगा, राइट। सो ये भी करता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म। ओके, सो बेसिकली इट इम्प्रूव्स द इमेज भी इम्प्रूव करता है। सेल्स प्रमोशन इट इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द फर्म इन द मार्केट। कभी कभी क्या होती है, इमेज डाउन हो जाती है, कभी कभी नहीं अच्छा, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सेल्स प्रमोशन का हेल्प लिया जाता है एंड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स, देन एग्जीबिशंस, और फिर बहुत सारे तरह के आपको मतलब ऐसे देते हैं कि ट्राई कीजिए। ओके, इन दिस वे दे ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो ये क्या करते हैं, फर्म की जो इमेज अगर बाई चांस कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको भी बनाती है। ओके, नेक्स्ट इज टू काउंटर सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इट काउंटर्स मीन्स क्या करता है कि सेल्स प्रमोशन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स, दे ट्राई टू प्रूव देयर प्रोडक्ट बेस्ट। ओके, तो वो क्या करें, काउंटर करते हैं, बेसिकली दे काउंटर विद द ऑपोजिशन और द अदर कॉम्पिटिटर्स, अदर पार्टी, right? So these are the objectives of your basically sales promotion, right? Next, we will focus on the role of sales promotion. What is the basically role? Okay, how the sales promotion plays an important role in marketing. Marketing में क्या role है इसका, right? So the first one is provides information. It's clear to you? I hope so. ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, राइट, कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, it educates and it gives knowledge about the product in the market, then automatically it is providing information also. It is providing information दे रहा है, right? So basically it provides information to the customers, dealers and all types of person, those who are related with this product. Clear? Next is, and we can say that this sales promotion provides support to the marketing offers. It helps in marketing basically. Okay, it provides a support to the marketing offers. Next, stimulate demands. Stimulate demands, basically sales promotion activities helps to create interest amongst the कस्टमर्स. इट क्रिएट्स इंटरेस्ट कि कोई किस तरह से बोलते हैं, आप ये लीजिए, आपको ऐसा, आपके लाइफ में ऐसा होगा, इट विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, ये एक बार आप यूज करके देखिए, एज अ सैंपल यूज करके. सो व्हाट इज दिस, दे आर प्रोवोकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर. वो कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोवोक कर रहे हैं, राइट. So this is sales promotion activities helps to create interest about that particular product amongst the customers, right? We can say that stimulate, it is a persuasive tool. एक ये persuasive tool है, persuades the customers. Next is create product identity. Okay, this sales promotion it creates the प्रोडक्ट आइडेंटिटी. वो उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को भी क्रिएट करता है इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी को भी क्रिएट करता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग, ठीक है, आप लोग जा रहे हो, तो इन दैट कंडीशन वहां पे क्या होगा कि आप मार्केट में बहुत सारी चीजें देखते हो, तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं, जस्ट से दैट यू जस्ट ट्राई इट, आप एक ट्राई कीजिए, राइट. उस तरह से कई बार ऐसे होता है सैंपल फॉर्म में कि आप एक महीने के लिए ट्राई करके देखिए. ओके, तो व्हाट इज दिस, दे आर जस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट, वो सेल कर रहे हैं. ओके, सो दे क्रिएट्स आइडेंटिटी अबाउट देयर प्रोडक्ट. मीट कॉम्पिटिशन मीन्स जस्ट इन योर क्लास, जैसे तुम लोग क्लास में जब रहते हो तो एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ बेस्ट, राइट. तो दैट्स गुड. ओके, प्रूव कर रहे हैं. सो इन दिस ऑल्सो, इन मार्केट ऑल्सो, एवरीबडी ट्राइज टू प्रूव देमसेल्फ बेस्ट. That yes, my product, if I am selling this pen, so this pen is best for you. आपको एक बार ट्राई करनी है. तो क्या हम कंपटीशन से भी we are facing, मतलब फेस करते हैं. And in this competition, in this cutthroat competition, they try to prove themselves best. Who? The sellers, right? Next is satisfaction of the customer. The most important thing, satisfaction of the customer. For example, if I am teaching in the class, okay, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, तो क्या मैं कितनी बार ऐसे होते हैं तुम लोग के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, राइट. कभी कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है
कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? जैसे शांतनु क्वेश्चन करता है, ओके, निर्भय का बार बार डिस्टर्ब कर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली they are not satisfied, or if whatever I am teaching, if you are not satisfied, then you will somewhere you will create disturbance. ठीक है? तो अभी क्या है, अभी आपको जो भी I am sending the lectures, recorded lectures, you have to be satisfied in that, right? If you have any query, you are asking questions. So what is that? That satisfaction of the customer is very important. बहुत जरूरी है. अगर एक टीचर बच्चे को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, इट मीन्स दैट वी आर नॉट अप टू द मार्क. लेकिन यस, इफ वी आर satisfying the customer, that's fine. In the same way, the dealers, the suppliers, they try to satisfy the customers, right? Next is permits control. Now permits control means basically what is happening in the organization. This sales department, okay, sales promotion permits the firm to keep the effective check on the results achieved. Basically all the organization, their aim is to earn profit, okay? So all the sales promotion departments, they permits that yes, we have achieved the target or not. क्या हमने टारगेट को अचीव किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया तो और कितना अचीव करना है, राइट? सो इट्स ऑल हैपनिंग. सो जो ये एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये यही काम करते हैं. दे बेसिकली दे डू द सेल्स प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट? सो दीज आर द रोल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. Basically 6 roles are given: provide information, second is your stimulates demand, third is to create product identity, and fourth meet competition, fifth satisfy customer, and the last 7 permits control. Okay, next is your consumer sales program and dealer sales promotional program. Okay, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि consumers, those which are related with the customers, right? Those who are related with the customers. Clear? So basically what is happening here, the consumer sales program which is related to the customer, in the sales promotion programs directed towards the customer, and their main motive is to their aim is to attract the new customers towards their product. So that's why here consumer sales program, and you have seen so many times that देखा भी होगा कि शॉप्स के बाहर लगा होता है कि डिस्काउंट, प्रीमियम्स. ओके, समटाइम्स द प्रोड्यूसर, द सेलर्स, दे प्रोवाइड डिस्काउंट्स, स्पेशल कूपन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, जैसे ठंडी का सीजन है तो ठंडी में क्या होता है, एसी पे, रेफ्रिजरेटर्स पे, क्योंकि उसकी सेलिंग कम होती है, तो ऐसी चीजों पे वो डिस्काउंट्स देते हैं, राइट? स्पेशल कूपन्स देते हैं, कुछ प्रीमियम्स दे देते हैं. सो व्हाट इज दिस? दे वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट, राइट? Now, dealer sales promotion program, what is this? Basically, in this the program, sales promotional activities are conducted to induce dealers to keep a large stock with them. Basically, this is to motivate the dealer so that they can deal with that particular product. ये क्या है? Basically, dealers को motivate करने के लिए कि आप ये product sell करो, उसको रखो अपने पास ज्यादा स्टॉक और लोगों तक पहुंचाओ, right? So basically, there are different ways in which the dealer's interest is created. The dealers were motivated to take over the responsibility of that particular product. ठीक है, सारे डीलर्स क्यों लेंगे? सारी शॉप्स पे आप देखो, कुछ शॉप्स पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट? तो ऐसा ही यहाँ पे भी है. फर्स्ट इज डीलर प्रीमियम. डीलर प्रीमियम में क्या होता है? प्रीमियम्स आर ऑफर्ड टू द रिटेलर्स फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स. मान लो कुछ प्रोड्यूस किया गया, उसने डीलर से कांटेक्ट किया, प्रोड्यूसर ने, और उसने कहा कि अगर आप इतना बेच दोगे देन वी विल प्रोवाइड यू सम प्रीमियम्स. आपको कुछ प्रीमियम्स प्रोवाइड करेंगे, एज एन इंसेंटिव्स, कुछ अच्छा प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो दैट इज डीलर्स प्रीमियम. डीलर्स को कुछ प्रीमियम प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज डीलर कॉन्टेस्ट. डीलर कॉन्टेस्ट मीन्स व्हाट इज हियर? बेसिकली डीलर्स कॉन्टेस्ट, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर? इट्स ऑल अबाउट दैट in this context the additional incentives are offered for attaining the predetermined sales target. देखा भी होगा कई ऐसे कंपनीज होती हैं जैसे LIC हो गई और भी बहुत सारे ऐसे जिसमें बेसिकली द पीपल्स आर वर्किंग फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दे प्रमोट
द डीलर्स कि अगर आपने इतना प्री डिटरमाइंड जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव उसको अगर अचीव कर लिया, देन वी विल प्रोवाइड यू सम इंसेंटिव्स। जैसे LIC में भी होता है कि एजेंट्स होते हैं, उनको फिक्स होता है कि डे भर में आपको इतने अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अपना ये आपका टारगेट है, यू हैव टू अचीव इट। आपने कई बार कई लोगों के मुंह से भी सुना गया कि दिस इज माई टारगेट फॉर द मंथ, फॉर द डे। सो अगर उन्होंने वो अचीव कर लिया, दे विल गेट द इंसेंटिव्स एंड दे विल बी प्रमोटेड, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स प्रमोशन। वो सेलिंग कर रहे हैं, ओके। सो डीलर्स अगर इस तरह के कॉन्टेस्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल टेक इंटरेस्ट इन दैट। देन एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स मीन्स होर्डिंग, शेल्फ्स। कई बार देखा होगा कि बैग्स होते हैं, उस बैग्स पे उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिखा होता है, प्रीमियम, टाटा टी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स। तो वो क्या है, कई बार ऐसे होते हैं डीलर्स जो आप सेल करते हैं, उनके पास स्टॉक में टेबल्स आ जाते हैं, चेयर्स आ जाते हैं, तो पूछो कहाँ। सो दैट इज गिवन बाय द प्रोड्यूसर। सो ये क्या है, डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये इतना बेचोगे तो इतनी सेलिंग होगी, राइट। कई बार क्या होता है कि बेसिकली जैसे जो आपके क्लोथ्स शॉप्स होती हैं, उनमें अगर जैसे रेमंड्स, सियाराम्स, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दे ट्राई टू मोटिवेट द डीलर्स इन सच अ वे। क्या करेंगे, अगर आपने इतना उनका फिक्स टारगेट अचीव कर लिया, सो आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू द फॉरेन, बेसिकली फॉरेन टूर, ओके। वो फॉरेन टूर पे भेजते हैं, वहां पे कुछ मीटिंग्स करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो डीलर है वो मोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अगर हमने इतना बेच दिया रेमेंस का, सियाराम का, देन we will go there, okay. So what is this? This is all the advertisement materials. They are trying to create the interest among the dealers for that particular product. Now store demonstration. Store demonstration कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप्स होती हैं, वहां पर कई ऐसे लेके आते हैं कि वहां पे लगा देते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, यस दिस इज दिस, दिस इज दैट, ओके। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे बेसिकली तो कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि उस डीलर्स की दुकान पे दूसरे बाहर के लोग, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ओके। सो स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोर पे ही जाके डेमोन्स्ट्रेशन करना। नेक्स्ट इज स्पेशल डिस्प्ले. स्पेशल डिस्प्ले, द प्रोड्यूसर इन कोलैबोरेशन विद द डीलर मे पुट up the special stores of the product at fairs and exhibitions. कई बार देखा होगा जैसे यहाँ पे अपने गोरखपुर महोत्सव में कई बार ऐसे फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगे होते हैं, जो प्रोडक्ट और जो चीजें हम कहीं नहीं देखते हैं वो शायद वहां पे हमें देखने को मिल जाती है. व्हाट इज दैट? सो वो कुछ कोई ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे एग्जीबिशंस लगाते हैं जिससे क्या होता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं कि यस वी शुड गो फॉर इट, राइट. So that is special display. उसको special display करना, right? Especially they try to introduce that product among the customer and in the market. So this is dealers promotional program. Okay. So let's start techniques of sales promotion. Okay. What is sales promotion? Okay. So basically sales promotion हमने देख लिया क्या होता है. Now what are the techniques which are used for selling the product in sales promotion, right? So, okay. First is distribution of free samples. The free samples means to provide that particular product as a free. ठीक है, particular product को free में देना, so that the customer should use, okay, and if he gets the satisfaction, then obviously he will go for that particular product. तो as a free sample कई बार कई magazines में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि as a free sample कुछ शैशे शैम्पू के स्टिक होते हैं. तो what is that? दैट इज फ्री सैम्पल. ओके, कई बार ऐसे ही हमें प्रोडक्ट्स हमने शॉपिंग की, वहां पे एज अ फ्री सैम्पल हमें मिल जाता है कि ये जस्ट ट्राई दिस. सो व्हाट इज दैट इज ऑल्सो फ्री सैम्पल विच इज गिवन टू द कस्टमर सो दैट इफ दे आर सेटिस्फाइड दे कैन परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Next is coupons. Coupons are the certificates which proves that yes, this particular person or the customer will get the discount and the on particular service or product. राइट. सो ये कूपन्स भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम रिलायंस में जाते हैं, बेसिकली मोस्टली रिलायंस में शॉपिंग करते हैं, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है, दे प्रोवाइड्स यू कूपन्स. ये कूपन्स देते हैं कि मैम इफ यू विल परचेज 5,000 rupees and then we will provide you this coupon, and if after 2 months again you are doing the shopping of 4,000 rupees, then you have to pay only 1,000 rupees, right. So in this way they are attracting the customer, so okay, so that their selling can be increased. Okay, so this is coupons. नेक्स्ट इज प्रीमियर और बोनस ऑफर. प्रीमियर और बोनस ऑफर्स मीन्स जैसे मान लो मैं ये खरीदने की तो इसके साथ मुझे इसके इंक प्रोवाइड कर दिया, फ्री दे दिया. सो व्हाट इज दैट? दैट इज बोनस, कि उसके बदले मुझे एक ये मिल गया. इफ यू विल परचेज 1 kg ऑफ सर्फ एक्सेल, देन विद दैट यू विल गेट 1 bucket. सो व्हाट इज दैट? दैट इज
प्रोवाइडिंग अ बोनस, एक बोनस मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है. ओके, next is trading stamp. Trading stamp in your books given that bonus stamp are issued by retailers to the customer who buys good from them. Basically these trading stamps, such stamps of that particular shop or that retailer, they provide you that stamps, and if you in future you are going, means you are a regular customer of that particular shop, then automatically they will give you that stamp, and with the help of that stamp you can do purchasing, and on that purchasing you will get some discount. So that is trading stamp. Next is price contest. Price contest देखा होगा बहुत बार शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े शॉप्स पे दे गिव्स यू जस्ट प्राइस का, अगर आपने इतना किया तो इस पे आपको ये मिलेगा. ओके, प्राइस कॉन्टेस्ट रख देते कि अगर आपने इतने की शॉपिंग की 10,000 की, सो यू विल गेट वन म्यूजिक सिस्टम. ओके, सो ये सब क्या है, इट्स अ प्राइस कॉन्टेस्ट. प्राइस देते हैं, मैम आप ये लीजिए, इतने की शॉपिंग की, हम आपको कॉल करेंगे, बताएंगे कि आपने इतना जीता है. सो व्हाट इज दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट इज फ्री ऑफर. फ्री ऑफर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स गिवन बाय different companies and the organization. Okay, it promotes sales. Some firms offer a free gift. फ्री गिफ्ट देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि चैनल्स का होता है जैसे. ओके, देन दे से देयर, अगर आप इतने दिन का लोगे, इतना ये पैक लेंगे, देन यू विल गेट वन मोर चीज. ओके, सो इन दिस वे दे प्रोवाइड्स यू फ्री ऑफर्स. ऑफर्स देते हैं कि अगर आप इतना लोगे, ओके, एंड दिस इज अ फ्री गिफ्ट फॉर यू. ठीक है, तो fair and exhibitions also a type of sales promotion. Okay, कई बार क्या होता है कि ट्रेड फेयर्स में जस्ट ट्रेड शोज, फैशन शोज, एंड देन द fairs, exhibitions are the important techniques of sales promotion, because these are the some glamorous techniques with that the customers get attracted instantly, they get influenced with that particular product. ओके, इससे ये थोड़ा सा मतलब बहुत अट्रैक्टिव होता है, सो इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर वेरी फास्ट. ठीक है, तो फेयर एंड एग्जीबिशंस के थ्रू. देन मर्चेंडाइजिंग एड्स गिवन इन योर बुक दैट दिस रेफर्स टू द सर्विसेज प्रोवाइड टू इंड्यूस कमर्शियल बायर्स टू परचेज गुड्स in large quantity. Such aids includes training and store layout and inventory control, advertising products and demonstration. कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इफ यू विल टेक आवर प्रोडक्ट, मतलब जो रिटेलर्स होते हैं उनसे, देन वी विल डू सम, वी विल प्रोवाइड यू फ्री एडवर्टीजमेंट्स. हम फ्री एडवर्टीजमेंट्स करवाएंगे, ये आपके स्टोर्स का ज़्यादा हम मार्केट तक लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपके स्टोर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इन दिस वे दे अट्रैक्ट द कस्टमर. स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अट्रैक्टिव कर देंगे, तो एक तरह से ऑफर करते हैं. ये बेसिकली लार्ज स्टॉक के लिए होता है जो बहुत ज्यादा स्टॉक लेते हैं. ओके, एंड clearance sale means sales at reduced price may be organized at important festivals और अदर ओकेशंस. कई तुम लोगों ने देखा होगा कि दिवाली, होली, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, दे जस्ट ऑफर द सेल लगा देते हैं कि ये ले जाइए, इसके साथ ये फ्री. बहुत सेल्स लग जाती है, इतना का सामान इतने में मिल जाता है, राइट. कम ज्यादा 100 का सामान है तो 50 में मिल जाएगा, और ओके 1000 का सामान है तो 500 में. सो दे प्रोवाइड द सेल. क्यों? क्योंकि उनको अपने स्टॉक कहीं ना कहीं क्लियर करने होते हैं, तो ये क्लियरेंस सेल होता है. कई बार देखा होगा बहुत सस्ते में, तो दैट इज क्लियरेंस सेल. वो अपने सेल बढ़ा रहे हैं, बस उनको अपने स्टॉक को क्लियर करना है, इस वजह से. Then exchange offer so many times. If you come with your this 5-liter cookers, prestige cooker, we will provide you this. So ये क्या एक्सचेंज ऑफर है, मीन्स आप अब एक प्रोडक्ट लाओगे, उसके बदले में हम आपको दूसरा प्रोडक्ट देंगे. सो एक्सचेंज ऑफर इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो दीज आर द सम टेक्निक्स विच आर यूज्ड, ओके, for sales promotion to attract the customer. If the customers are attracted, they are satisfied, then the selling of that product will be more. Okay, so these are the some important aspect of marketing. So in this chapter we learned about the advertisement, meaning, its role, importance, how they are important for the customers, societies, dealers. Then sales promotion, its techniques, okay, its objectives, role. So here this chapter is over in commercial studies. Okay, I hope that all the doubts are clear to you. Okay, and it's very easy chapter and interesting chapter.
Okay, so thank you so much.